Welcome back to your own channel Trending Stocks. So friends, standard disclaimer है कि whatever I'm sharing is just technical opinion. किसी भी तरह की buy या sell recommendation नहीं है. So without wasting much time, let's go to the charts now. Let's see what were the queries that were received. Sai Charani has asked about Ola Electric. You see this thing, एक अच्छा वॉल्यूम बार बना है, but it needs to cross this previous high, which is 50-51 range. If it crosses that level, then it will be in good buy range, and then it will perform good. Below that, of course, the volume is supportive. I mean, chances are high that it will perform good. So if you have bought it, you can stay, keep it on hold. But if you want to buy fresh, let it cross that essential level. Umang Patel is asking about Apollo Micro. उमंग जी, इसका जो फाइनल टारगेट था ना, दैट इज 236-37. सो दैट हैज ऑलरेडी बीन अचीव्ड. तो अब यू वांट टू बोर्ड दिस रनिंग ट्रेन, तो एक रिस्की बेट हो जाएगी. इन केस प्रॉफिट बुकिंग कम से हो सकता है, विद मोमेंटम इट गो लिटिल मोर अप, बट आई जस्ट टॉक अबाउट द लेवल्स, टेक्निकल लेवल्स. यहां से मेरे हिसाब से अब प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है. यहां नहीं हो सकता, थोड़ा ऊपर से आएगा, बट द टेक्निकल टारगेट इज अचीव्ड. और अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं भी आएगी तो क्वाइट पॉसिबल दैट इट विल कंसोलिडेट एट दिस रेंज, एट दिस price or around this price for say weeks and months. Maybe with momentum it will go a little more, but it is a risky bet as of now. देखिए, स्टॉक्स अच्छे लगते हैं पर तब जो अपनी सपोर्ट के पास होते हैं. अब ये एक रेजिस्टेंस बनेगी until unless कोई बहुत ज्यादा री रेटिंग हो रही हो, which I don't think is happening as of now. Okay, but if you are holding, यू कैन ट्रिल योर स्टॉप लॉस. अब देखिए, वीकली कैंडल तो बहुत बढ़िया, 190 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के यू हैव टू होल्ड. और अगर फ्रेश बाय भी करना होगा तो इफ इट कम्स टू दैट रेंज अराउंड 190, देन इट विल बी अ फ्रेश बाय लेवल. सो फॉर फ्रेश बाय इट्स अ नो, बट इफ यू आर होल्डिंग यू कैन कीप होल्डिंग विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस. Devesh Singh is asking about on mobile. देखिए, levels I have already marked so that I don't have to waste much time when I'm discussing about these. Devesh जी, देखिए, it has been around the support zone, but bottom is still not formed. अभी तक it is, maybe it needs some catalyst or something to move. To be very frank, it will get strong only when it crosses this level. 68-69 पार करने के बाद ही इसमें स्ट्रेंथ आएगी. उसके नीचे इट में आइदर कंटिन्यू टू रिमेन साइडवेज, और ये भी पॉसिबल है कि एक फर्दर ब्रेक डाउन हो जाए इफ दैट डजंट हैपन, और इफ एनी नेगेटिव न्यूज और बैड रिजल्ट्स कम लाइक दिस. तो अभी तो अवॉइड है. इफ यू वांट टू बाय, देन इट्स अ बाय अबव 68-69 रेंज. मोनू कुमारी इज आस्किंग अबाउट कोफोर्ज. आईटी तो अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एंड कोफोर्ज इज आल्सो नो एक्सेप्शन. ओके, तो बेसिकली ट्रेंड लाइन देखिए, सपोर्ट के पास ही इसने यू टर्न लिया है. क्वाइट पॉसिबल इट विल गो टू दिस लेवल विच इज अराउंड 1950-70 रेंज. ओके, देयर यू, और स्टॉप लॉस क्या रहेगा? बिलो 1680. So that will be the stop loss, and on the upside quite possibly it will go to 1970-1980. और कहीं से कोई गुड न्यूज आ गई और एक ब्रेकआउट हो गया, then it will go further beyond 2000, even 2200 plus possible. So it's a quality stock. Yes, you can stay, I mean hold or buy, even buy with the same levels that I have mentioned. Raghvendra Rao is asking about
idea. And idea is basically wastage of time. People buy stocks because they think they can buy, say, for 7 rupees, you can buy 1,000 stocks for just 7,000 bucks. But it doesn't work. One stock of 7,000, that is, say, Apollo Hospital would have given you 100 rupees, right, 1,000 rupees in this one month. And this stock, see, it's a long story. This is the level of 2019. I don't know why people buy such stocks, which, I mean, either it is potentially something. I mean, stock is moving, and it has taken U-turn, or there is something. I mean, everyone knows Idea is not performing good these days. I mean, the company wise, okay, they are losing their subscriber base and all that. So even technicals show this. For me, it is a void. Even if it comes here, see, it goes here and it comes near resistance, and then profit booking comes and it comes down. So it's just wastage of time, money, and energy. Still, if you want to hold, if it crosses 8 rupees, then the chances are it will go to 9 rupees 50 paisa. Ronak Solanki is asking about Ease My Trip. Actually, it is Ease My Trip. You had typed, written Easy My Trip. It's Ease My Trip. That is Easy Trip Planners. So it is looking very weak. Every retracement gives you see further selling. I see large selling volumes are there. Okay. I'm afraid it might come to it's this level, all-time low level. On the upside, it needs to cross this level, which is 11 rupees, 11 to 12 rupees range. If it crosses that, only then, and if it happens, you can always do the fresh entry there. There is nothing now, because if it crosses 12, then even 20 is also possible. But here, it's a falling stock. Okay, it can go to all-time lows also. Right now, every retracement is a falling opportunity. So when it crosses certain resistance, तो उसके बाद क्या होता है कि वो एक every fall is a buying opportunity, और जब stock weak होता है तो every retracement is falling opportunity, selling opportunity rather. Mustafa is asking about Tata Motors. देखिए, टाटा मोटर एज सच has touched all time. I mean, जो इसका retracement level था, it has already touched and reversed from there. Now it is consolidating, showing some strength. But this level 740, 750, whenever it crosses, even I will buy that. Till that time, I will avoid it. And chances are this is a Tata group, Tata product. Okay, so it might take a lot of time, say weeks or months, but of course if you can hold it, you can continue to hold it. But from trader point of view, अगर ये एक level cross करता है 740 750 range, then even I will step in. Sekhar Sharma is asking about Enviro Infra. शेखर जी, अच्छा लग रहा है, आप देख रहे हो, ठीक है. अभी कोई बहुत ज़्यादा पुराना स्टॉक नहीं है, बट 240 आप यही एलिगेटर के नीचे का हम स्टॉप लॉस लगा के यू कैन होल्ड इट. चांसेस आर ये पहले अगर मार्केट स्टेबल रही तो इट विल टच दिस 290 एंड देन इवन 330 इज ऑल्सो पॉसिबल. स्टॉप लॉस विल रिमेन अगेन द सेम. I think we don't have much data, and it might be a small, cap company. Small cap companies move both sides violently. Ranjeev Kumar is asking about Hind Zinc. देखिए, हिंदुस्तान जिंक जो है ये एक बहुत बड़ी सेलिंग कैंडल बनी थी, रेड कैंडल. ओके, तो ये भी अभी तक रेजिस्टेंस फेस कर रही है. इट इज नॉट एबल टू क्रॉस.
Even if it crosses this range, it still needs to cross this level, which is 450. 450 के ऊपर it will be a good buy. तब तो I mean then it can go for even 500 plus 550 plus levels. So I'm just talking about technicals. Okay, as of now it is facing this. See, whenever it comes here, you see the red candles coming there. That means it is still not performing good. It's just kind of consolidation, you can say. Biplab Nandi is asking about Sula Vineyards. इस कंपनी की परफॉर्मेंस ना ओवर टाइम जितनी उम्मीद थी वैसे इसने परफॉर्म नहीं किया. इवन देयर wine tourism is not performing that good, which was expected. तो अभी तो हालांकि देखिए वॉल्यूम आ रहे हैं, बाइंग वॉल्यूम्स आर सीन, बट इट हैज ये जो लिस्टिंग प्राइस था उसको भी ब्रेक कर चुका है, एंड इवन दैट इज नाउ एक्टिंग एज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. तो जब तक ये इस रेंज को क्रॉस नहीं करेगा, दैट इज 310, तब तक इसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगी. ये ऑफ कोर्स इन फ्यूचर इट माइट परफॉर्म, तो वी डोंट नो, बट टेक्निकली यू नीड टू क्रॉस दिस रेंज. तो अगर मेरे पास अगर थोड़े बहुत लॉस पे भी होता तो, और मे बी वेन एवर इट विल रिटेस्ट इट विल कम टू दिस लेवल 290 285, देयर यू कैन रिड्यूस और एग्जिट. बाय बनेगा 310 के ऊपर ही whenever it starts closing over this for a week. Suraj Aryan is asking about UCO Bank. मुझे लग रहा है जितने भी PSU में से ये 2-4 banks are not performing good. Yes, of course, PSU banks are looking good. Okay, they can perform. I am very positive on PSU banks, but this bank needs, इसको I would rather say इसको बेच के आप स्टेट बैंक ले लो. स्टेट बैंक इज वेरी पॉजिटिव एंड इट इज लीडर ऑफ दिस. ये स्टॉक्स तो वो थे, बट आई मीन यू गो बैक बाय 5 or 10 years, कोई इनको हाथ भी नहीं लगाता था. आई एम अफ्रेड अगर ऐसा टाइम दोबारा ना आए, बट स्टिल you need to go with the best stocks. I mean, Bank of Baroda is there, State Bank is there, even PNB is good. ये तो टेक्निकली भी अंडर परफॉर्म कर रहा है. लेट्स सी हाउ इज SBI परफॉर्मिंग. वही बात है ना, पीपल थिंक कि 28 रुपीज है, वो कहा वो 800 रुपीज. इट इज नॉट हाउ इट वर्क्स. प्रॉफिट आना चाहिए फॉर 1 स्टॉक और 100 स्टॉक्स. इट्स जस्ट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दैट मैटर्स. देखिए स्टेट बैंक का एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है. इट इज तो सो आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन दिस. यू वुड रादर गो विद स्टेट बैंक. अवॉइड दिस बैंक्स. HDFC बैंक, यस ऑफ कोर्स, इसका तो मैंने पहले से ही ऑल टाइम टारगेट दे रखा है 2100 का, एंड इट विल सूनर और लेटर इट विल गो, एंड इट्स अ क्वालिटी स्टॉक. अभी भी स्पॉट के पास ही है. ओके, इट्स अगर फर्दर फॉल आता है मार्केट, विच आई डोंट थिंक, हाँ भाई वैसे थोड़ी सी है गैप, एक गैप जो मैंने अभी शेयर भी किया है, बट स्टिल इट इज अराउंड सपोर्ट. तो इफ इट sooner or later it has to go to this level 2150-70 range. So it's a quality stock. Every fall is a buying opportunity. मैंने 1300-1400 के आसपास भी इसको बाय करवाया था. There was so much negativity at that time. Avdesh Kumar is asking about Jubilant Food. देखो जुबिलेंट में एक ब्रेकडाउन हुआ है, ये ट्रायंगल का ब्रेकडाउन हुआ है. सो आई वुड से अवॉइड एज ऑफ नाउ. द मोमेंट इट क्रॉसेस दिस रेंज, आई मीन जो अगर ट्रायंगल ब्रेकआउट होगा अबव 700, देन इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. अभी फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है और हो सकता है कि इनवर्स राउंडिंग बॉटम बनाए. अगर ऐसा हुआ तो इट विल कम टू दिस रेंज विच इज 450-70. Manish Yadav is asking about IDFC First. IDFC First Bank patience test करेगा. Do if you are invested in this stock
forget it for another couple of years. अगर आप इसके रेट्स रोज चेक करोगे ना, इट विल नॉट परफॉर्म लाइक दिस. अभी भी सपोर्ट के ऊपर है. इट इज सी, इट्स नॉट अ ट्रेडिंग स्टॉक. इट विल टेस्ट योर पेयर. जब इसकी लास्ट लेग आएगी तभी ये बहुत फास्ट चलेगा, एंड देन इट आई मीन यू वोंट बी एबल टू कैच इट. बट तब तक इट मे टेक वीक्स एंड मंथ्स एंड इट विल बिहेव लाइक दिस. जाएगा तो ये 140 तक. कब जाएगा? इट मे टेक अनदर कपल ऑफ इयर्स, हु नोस. हाँ, बैंक्स भी अगर परफॉर्म करना शुरू करेंगे तभी तो ये भी परफॉर्म करेंगे ना. अभी तो सारे बैंक्स भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं एंड इट इज अबव सपोर्ट जोन. तो अगर आप इन्वेस्टर हो, यू कैन एक्यूमुलेट हियर, यू कैन स्टे इन्वेस्टेड even if you don't want to add further, but forget this. Stop looking at its price for say another 2-3 months. 54 यहाँ पे आया था एंड मैंने 52 रुपीज, ये आई थिंक 50, मैंने 50 रुपीज पे आया था. आई हैड थॉट ऑफ एडिंग ह्यूज क्वांटिटी, तो वहां पे आया ही नहीं. एनीवे, सेंथिल जो इज आस्किंग अबाउट CDSL. सपोर्ट के ऊपर है काफी. ओके, इट शुड गो टू say 1700 and then 2000 also is possible. So it's performing good. It taking support at support zone which is 1500 odd levels. So you can stay invested, not an issue. अभी तो ये एक गैप फिल किया है इसने एंड नाउ रिवर्सिंग. इट विल गो फॉर अनदर अप मूव आफ्टर सम टाइम. प्रीतम पॉल इज आस्किंग अबाउट AWL. देखो, वॉल्यूम बाइंग इज देयर. रिवर्सल इसका होगा 270 के ऊपर. उसके बाद अगर ब्रेकआउट, ट्रायंगुलर ब्रेकआउट हुआ तो देन इट विल गिव वेरी गुड रिटर्न्स. आई एम पॉजिटिव ऑन दिस स्टॉक. ओके, रिवर्सल साइंस आर देयर एंड राइट नाउ इट्स मूविंग इन अ ट्रायंगल. अरुण मंडारी इज आस्किंग नैल्को. यार जब आप ऐसे लिखते हो ना, नाउ इट्स नॉट शोइंग अप, इट्स एक्चुअली नेशनल एल्यूमिनियम. See, it's consolidating above the support zone. तो आप होल्ड करके रखो. ये 180 के नीचे जाके ही वीक होगा. बट इवन इन दिस मार्केट इफ इट इज होल्डिंग दिस लेवल तो चांसेस आर कि ये अच्छा परफॉर्म करेगा. ये 200 के ऊपर एक राउंडिंग बॉटम बनेगा, देन इट कैन गो टू दिस 250 लेवल्स ऑल्सो. अंशुल इज आस्किंग अबाउट SBI कार्ड्स. एक गैप डाउन बना हुआ है इसका, अभी वो गैप फिल पेंडिंग है अभी भी. बट आई वुड से इसको ये ये रेजिस्टेंस जोन है 850 to 860 रेंज. अगर ये इसको क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू हो गया देन इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. बट दिस स्टॉक ऑल्सो इज नॉट परफॉर्मिंग गुड फॉर लॉन्ग टाइम, है ना. देखो पिछले 6 साल में वहीं पे है. So either the stock should be falling or coming out of any channel or something. कोई एक रीजन तो हो. मयूर यादव इज आस्किंग अबाउट BSC का मैंने ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं. मैंने पोस्ट भी डाली थी या 27-2800 के आसपास डाला था. मैंने कहा था कि इट विल गो डाउन नाउ. ओके, देखिए एक लेवल तक एक स्टॉक भाग सकता है. इट हैज रन लॉन्ग. अब उसके बाद जैसे ही इसने देखिए आप मंथली पे इसने बियरिश इनगल्फ बनाई, द मोमेंट इट केम बिलो दिस लेवल दैट इज 2690, इट वाज क्लियर दैट इट इज गोइंग टू फॉल. अब हो क्या रहा है कि जब भी गुड न्यूज आती है ये 1-2% भागता है और जब बैड न्यूज आती है तो इट फॉल्स बाय 5-6%. तो मेरा फर्स्ट टारगेट तो 2200 था, तो दैट माइट बी कमिंग सून.
उसके बाद इवन 1900 इज पॉसिबल, और उसके नीचे अगर आया तो ये 1700 इज ऑल्सो पॉसिबल। हाँ देखो, अभी जो दिख रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, मे बी इन बिटवीन एनीथिंग कम्स, एनीथिंग हैपन्स, बट ऑफन इट इज सीन कि जब स्टॉक अपने डाउन ट्रेंड में होता है ना, तो जितनी मर्जी गुड न्यूज आ रहे हैं, इट डजंट परफॉर्म, एंड इट परफॉर्म्स बैडली ऑन बैड न्यूज। तो बाय तो बिल्कुल नहीं बनता। अगर आप स्टक हो तो एंड आइदर रिड्यूस योर क्वांटिटी। स्ट्रॉन्ग कब होगा? ओके, लेट इट सी। द मोमेंट इट क्रॉसेस दिस रेंज 2550 के ऊपर जब क्लोज करना शुरू कर दे वीकली, देन इट विल बी द साइन ऑफ रिवर्सल। बट अभी तो मुझे नहीं। अब देखो ये वहां यहाँ पे भी रेंट होनी शुरू हो गई है हमारा एलिगेटर, तो चांसेस आर इट विल कम टू 2000। मैं ये नहीं कहता कि मैं कह रहा हूं वो वैसा होगा ही, बट द चांसेस, आई ओनली स्पीक व्हाट द चार्ट स्पीक। एक टाइम पे मेरा फेवरेट शेयर था, 400 पे मैंने दिया था, 1000 प्लस के टारगेट से। चिंतन शाह इज आस्किंग अबाउट आरबीएनएल। तो ये रेल विकास, देखिए ये भी ना अभी तो अंडर परफॉर्म कर रहा है। इट नीड्स टू क्रॉस दिस लेवल 380, 370 टू 380 रेंज, उसके बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो बाकी वॉल्यूम्स ज्यादा नहीं है, तो चांसेस आर इट विल रिवर्स। फॉलिंग वॉल्यूम्स में अगर रेड कैंडल्स बन रही हो ना, देन वी विल थिंक ओके सो वॉल्यूम सेलिंग, एंड देन यू हैव टू बी ना, यू नीड टू कंसर्न। कबीर शर्मा इज आस्किंग अबाउट सिल्वर बेस। $115 का टारगेट तो है ही है अभी, उसके बाद कीप्स ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस। आइडियली यू शुड क्लोज योर unless you are a very long term investor. As a trader, you can close your position there. ONGC जब तक 250 पार नहीं करेगा, it will not perform. And the point is, जितनी भी OMCs हैं, they are behaving violently for one reason, कि वो Russian oil and this oil and that oil, वो जो concept चल रहा है, you never know when Indian government increase buying from Russia or decreases, because that affects directly to the profitability of these stocks ना। ONGC तो चलो रिफाइनरी है, तो if that अगर वो if they start refining more, then they will be profitable. Technically it needs to cross 250 level. HPCL, BPCL, इसीलिए they when oil price, crude prices fall, they start moving, और जब वो ऊपर जाते हैं, then ONGC start moving, so they are actually behaving opposite to each other. So OMCs, as of now I'm avoiding. Oil India, again another OMC, it needs to cross this 430 to 440 range, उसके ऊपर चलेगा तो it will perform good. सरवण कुमार इज आस्किंग टाटा मोटर्स, वो बता चुका मैं ऑलरेडी। मनीष यादव इज आस्किंग अबाउट कोल इंडिया। कोल इंडिया इज वन ऑफ द PSUs जिसपे मैं बहुत पॉजिटिव हूं, वेरी पॉजिटिव। बस इसको ये लेवल क्रॉस करना है विच इज 390, और अगर सपोज करो नहीं भी परफॉर्म करता, इवन इफ इट डजंट क्रॉस दिस, आपको 20-25 पे ईयरली डिविडेंड आ रहा है, यू कैन री इन्वेस्ट। तो अगर ये नहीं भी चलेगा ना, तब भी आपके 5 साल में पैसे डबल हो जाएंगे, और अगर चल गया तो 4 गुना हो जाएंगे। दिस इज वेरी गुड स्टॉक, एंड दे आर एंटरिंग द रिन्यूएबल एनर्जी ऑल्सो। BHEL again looking weak as of now, 230 240 वही ONGC वाली लेवल है अप्रोक्सीमेटली, इसको क्रॉस करके it will turn positive, then it will go to 300 plus. अगर मुझे दोनों में कंपेयर करना हो BHEL कोल इंडिया, तो आई विल गो विद कोल इंडिया। रीजन बीइंग BHEL के ना डिविडेंड इज नॉट सो गुड, but Coal India is giving very good dividend.
So even if the stock doesn't perform, it is rewarding you with good dividend. That is a I think 5 रुपये 75 पैसे अभी आज या कल आने वाला है इसका डिविडेंड कोल इंडिया का. आईटीसी, विघ्नेश इज आस्किंग, विघ्नेश जी आईटीसी का ना 530 का टेक्निकल टारगेट पेंडिंग है. जब भी एफएमसीजी चलना शुरू होगा, अब वरुण बेवरेजेस भी चलना शुरू हो गया है, इमामी भी चलना शुरू हो गया है, डावर भी शायद, HUL भी, तो आईटीसी भी चलेगा. 530 इज द टारगेट. आईटीसी यू कैन फॉरगेट फॉर सम टाइम, चलेगा, बट वेन एवर इट मूव्स इट विल गो टू 530. वो टेक्निकल टारगेट तो उसने अचीव करना ही है. इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम. डी लिंक इंडिया, राइट नाउ एट सपोर्ट. ओके, अभी सपोर्ट पे है, बट टू गेट पॉजिटिव इट नीड्स टू क्रॉस 510. 510 के ऊपर ये पॉजिटिव हो जाएगा. अभी सपोर्ट पे है, तो इसके नीचे यू कैन कीप स्टॉप लॉस बिलो 470. तो उसके नीचे जाए, देखो समटाइम्स यू डोंट वांट टू एग्जिट, तो ऐसी सिचुएशंस में व्हाट यू कैन डू इज यू रिड्यूस योर क्वांटिटी. अगर वो वापस 510 क्रॉस कर जाता है, यू कैन ऑलवेज ऐड बैक. तो इसमें क्या होता है कि पीपल ऑन द कंट्री डू द अदर वे अराउंड. वो क्या करते हैं कि 470 पे आ गया, दे विल ऐड मोर क्वांटिटी, विच इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू व्हाट पीपल शुड डू. वो 470 पे करेंगे एवरेज, वो 450 पे आ जाएगा, तो then losses are going to multiply. Rather than that, always do pyramiding in positive manner. Means when it is going up, जब ये अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, तभी उसमें ऐड करने का सेंस बनता है. क्योंकि अगर वो पॉजिटिव में तो आप ऑलरेडी हो, तो मैक्सिमम क्या होगा कि आपकी बाइंग प्राइस से नीचे आएगा, देन अगेन यू कैन स्टार्ट रिड्यूसिंग. पर जब तक परफॉर्म कर रहा है, यू शुड गो विद इट. विपिन कुमार इज आस्किंग बैंक ऑफ इंडिया, ओ सॉरी स्टेट बैंक आ गया. अच्छा लग रहा है बैंक ऑफ इंडिया, सपोर्ट के पास है, वहां से टर्न कर रहा है. पीएसयूज आर आल्सो गुड, डूइंग गुड. मुझे लग रहा है ये एक ट्रेंड लाइन भी बनेगी शायद, जिसका ब्रेकआउट हो आ जाएगा. सो लुकिंग गुड. पाठक इज आस्किंग अबाउट, शिखर पाठक इज आस्किंग एल्केम लैब. एल्केम लैब देखिए सपोर्ट के ऊपर है, एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट भी हुआ है. सो लुकिंग गुड इन ऑल द टर्म्स. अब नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस बनेगी 5650. ओके, 500 6050 टू 5700. उसको क्रॉस कर गया, देन इट ऑल टाइम हाई इज पॉसिबल. द इंडिया सीमेंट्स, इंडिया सीमेंट का मल्टी ईयर ब्रेकआउट था. इफ यू सी दिस थिंग, कैन यू सी दिस थिंग, इसके फाइनल टारगेट बनते हैं 600 प्लस एंड द मिड टर्म टारगेट्स आर 450 प्लस. तो यू कैन गो विद इट. यू कैन इफ यू आर होल्डिंग, continue holding. If you want to buy, instead of buying all at one price, you can buy in staggered manner, and जैसे जैसे ऊपर जाए, जैसे जैसे आपको पॉजिटिव रिटर्न है, यू कैन ऐड बैक. उसमें आप अपने रिस्क को कम कर लो, तो अपने आप ही पॉजिटिव रिटर्न पॉजिटिव हो जाएंगे. सो आई थिंक दैट विल बी ऑल फॉर नाउ. ये सारे मैंने कर लिए. नाउ इफ एनीवन, आई थिंक नो वन इज लेफ्ट. तो अब इसके बाद की कोई क्वेरी मैं नहीं ले पाऊंगा, बिकॉज सारे तो वीडियो इज नाउ रेडी. सो दैट विल बी ऑल फॉर नाउ. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.